Hello dear students, today we are going to start our third chapter of Flamingo, that is Deep Water. So let's see about the author. William Douglas, 1898, he was born in 1898 and died in 1980. He was born in Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. So Yakima is in United States of America. It is in northwestern part of United States of America. Yesterday I told you, and he spent 2 years of teaching high school, but it was not the subject of his interest, and it was not the field of his interest. And what he did, however, he got tired of this and decided to pursue a legal career. So what he decided, that he would pursue a legal career, and he met Franklin D. Roosevelt at Yale and became the advisor and friend to the president. So he became the advisor and friend to the president. And after that, Douglas was a leading advocate of individual rights. So he was one of the leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. So he served for 36 years, and it's quite a long time period, and he got retired in 1975 with a lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. So the following excerpt is taken from Of Man and Mountain by William O. Douglas. Excerpt is what? It is the part. Okay. So Of Man and Mountains, this is his work, his autobiography, and this excerpt which we are going to read is taken from this work Of Man and Mountain. It reveals how a young boy, William Douglas, nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. So here in this excerpt, he would be telling us that how he feared, he was almost drowned in a swimming pool, and how he overcame his fear. And notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. So let's start the chapter. Here are some of the words, like notice these words and expressions in the text, infer their meanings from the text. So just you have to see all these words, and you have to see the expression in the text, and you have to infer the meaning of these words from the context. So let's start the chapter here. It had happened when I was 10 or 11 years old. So when he was 10 or 11 years old, I had decided to learn to swim. What he has decided? He had decided to learn to swim. And there was a pool at the YMCA in Yakima. So that offered exactly the opportunity. So YMCA, what is the full form of YMCA? It is Young Men Christian Association. So there was a pool at the Young Men Christian Association in Yakima that offered exactly the opportunity, and the Yakima River was treacherous. Yakima River was very deep, and mother continually warned against it and kept fresh in mind the details of each drowning in the river. So उनकी मदर क्या करती थी कि हमेशा उनको ये बताती रहती थी कि यकीमा जो रिवर है, that is treacherous and it is very dangerous, and she always kept fresh in mind the detail of each drowning in the river. हर बार वो ये बताती रहती थी कि किस तरीके से लोग उस नदी में डूब जाते हैं और किस तरीके से लोग डूब चुके हैं उस नदी में. बट द YMCA pool was safe. लेकिन ये जो YMCA pool था, that was safe, and it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. तो उसका जो shallow end था, it was only 2 or 3 feet deep.
एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और जो उसका डीपर साइड था दैट वॉज 9 feet, तो 9 feet डीप था, और उसका जो शैलो एंड था दैट वॉज 2 or 3 feet डीप. एंड वाइल इट वॉज द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, तो जो उसका जो ड्रॉप था दैट वॉज ग्रेजुअल. हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट? आप समझ लीजिए कि एक सीढ़ी का स्लोप है, और वो स्लोप बहुत ही कैसा था, ग्रेजुअल था, वो एकदम स्टीप नहीं था जिससे कि कोई गिर जाए, तो बहुत ही ग्रेजुअल स्लोप था. एंड आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द pool. So what he did, he got a pair of water wings and he went to the pool. So he decided to learn swimming. I hated to walk naked into it and show my skinny legs. So what he wants to say here, that he didn't want to expose himself, he didn't want to be naked and show my skinny leg, because his legs were very thin, and that is why skinny means what, very thin. So he never wanted to expose his body. But I subdued my pride and did it. Subdued means what, to overcome. So he overcame his pride and he decided that no, I'll learn it. तो उसने बिना अपने इज्जत की और इन सारी चीज़ों की परवाह किए बगैर, बिना अपने ऑनर की परवाह किए बगैर, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा. फॉर द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट. लेकिन शुरुआत में क्या था कि उनको डर था, डिसलाइक था पानी से. एवर्जन मीन्स व्हाट, डिसलाइक. सो आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट. तो जब भी वो पानी में रहते थे तो उनको एक पानी से एक डिसलाइक था, उनको वो पसंद नहीं करते थे पानी में जाना. सो दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. तो कैलिफोर्निया का एक बीच था, वहाँ पर एक बार वो अपने फादर के साथ गए थे व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, and he and I stood together in the surf. So the waves were coming and they were standing there, and what happened, all of a sudden I hung on to him, and because the waves were gigantic, they were strong, and that is why he hung on to him. He hung on to his father. Yet the waves knocked me down. लेकिन जो waves इतनी मजबूत थी, strong थी कि वो उनको बहा के ले गई, and और उनको नीचे गिरा दिया, और वो उस वेव के साथ बह गए. एंड आई वॉज बरीड इन वाटर, और उनको कहा क्या किया गया, वो क्या हुए, वो पानी में डूब गए. और माई ब्रेथ वॉज गॉन. अब उनकी जो ब्रेथ थी वो पूरी तरह से चली गई थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो बहुत डरे हुए थे. ही वॉज फ्राइटेंड एंड फादर लाफ्ड, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव. तो उनके फादर तो हंस रहे थे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर बैठ गया था. इन इतनी जाइजेंटिक वेव्स को देख के, इतनी ओवरपावरिंग वेव की इतनी ओवरपावरिंग फेस को देख के, वेव्स को देख के, फोर्स को देख के उनके अंदर एक डर बैठ गया था. Then my introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. So what he says कि when he went to YMCA swimming pool, जब वो वहाँ गए तो revived unpleasant memories and stirred childish fear. तो उनके दिमाग में वो जो childish fear था, जब वो 2-3 साल के थे, when he went to the जब सर्फिंग के लिए गए थे वो वहाँ सी के नज़दीक, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वो ऑलमोस्ट वेव ने उनको बहा लिया था, और वो सारी जो मेमोरीज़ हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो सारी मेमोरीज़ उनके दिमाग में चलने लगती हैं, घूमने लगती हैं. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन बहुत ही जल्दी वो एक कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं. एंड आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स. और जो वाटर विंग्स, नई वाटर विंग्स हैं, उससे वो पैडल करने की कोशिश करते हैं. और वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम. उनको देख देख के वो सीखते हैं, जो दूसरे बॉयज़ सीख रहे थे YMCA स्विमिंग पूल में तैरना, तो उनके साथ ही वो भी उनको देख देख के, एपिंग मीन्स व्हाट, किसी को कॉपी करके सीखना.
तो उसी तरीके से वो भी सीख रहे थे. एंड आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर. और धीरे 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 वो एक पानी में बहुत ईज फील करने लग गए थे. उनको ऐसा लगने लगा था कि मैं धीरे धीरे से स्विमिंग सीख जाऊँगा. ये जस्ट उनकी बिगनिंग थी. When the मिस एडवेंचर हैपेंड, लेकिन अचानक ही एक मिस एडवेंचर हुआ. और वो मिस एडवेंचर क्या था? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर. अब नेक्स्ट डे वो पूल में गए जब वहाँ पर कोई भी नहीं था. द प्लेस वॉज क्वाइट एंड द वाटर वॉज स्टिल. प्लेस बिल्कुल शांत था, वाटर भी बहुत स्टिल था क्योंकि तब तक पानी में कोई नहीं गया था. एंड द टाइल्ड बॉटम was as white and clean as a bathtub. तो उसकी जो स्विमिंग पूल की टाइल है वो बिल्कुल वाइट दिख रही थी, जैसे कि बाथ टब की टाइल हमको दिख जाती हैं. उतना क्लीन, नीट एंड क्लीन वाटर था और अनडिस्टर्ब था कि उसकी नीचे की जो टाइल थी, वाइट टाइल्स, वो भी बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रही थी. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. तो वो क्या थे? ही वॉज अफ्रेड, ही वॉज फियरफुल. टिमिड मीन्स वॉट? ही वॉज फियरफुल अबाउट गोइंग इन अलोन. अकेले जाने से वो डर रहे थे. सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर. और वो साइड में बैठ गए ताकि थोड़े और लोग आए तो उनके साथ वो फिर पानी में जाएं. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big bruiser of a boy. तो ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तभी अचानक क्या होता है कि एक बिग ब्रूजर आके खड़ा होता है ऑफ अ बॉय, प्रोबेबली 18 years old. वो शायद 18 years old था. और ब्रूजर क्या होता है? पर्सन हु इज टफ एंड एग्रेसिव एंड एन्जॉय फाइटिंग. तो एक ऐसा लड़का 18 years का जिसकी फ़िज़िक बहुत अच्छी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल फिज़िक का एक लड़का था जो कि बहुत ही टफ था, बड़ा एग्रेसिव सा था और वो फाइटिंग को बड़ा एंजॉय करने वाला लड़का था. तो उसी तरीके का एक 18 year old बॉय केम इनसाइड द स्विमिंग पूल इन YMCA स्विमिंग पूल एंड ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. उसके चेस्ट पे बड़े मोटे मोटे से हेयर्स थे. एंड ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन मतलब कि एग्जाम्पल था. वो एक बहुत ही फिजिकल ब्यूटी का एक एग्जाम्पल था. वो इतना फिट था. with legs and arms that showed rippling muscles. अब उनके जब लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाते हैं, तो उनकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही क्लियर दिखती हैं. तो उसी तरह के उनकी जो मसल्स थी वो पूरी दिख रही थी और बहुत ही अच्छे फिजिक का वो लड़का था. ही येल्ड. अब वो चिल्लाता है, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग. सो व्हाट ही सेज कि हाय स्किनी. अब वो उस बच्चे को बुलाता है. स्किनी मतलब कि जो बहुत दुबला पतला सा है उसको स्किनी यहाँ पे बोला गया है. तो उस बच्चे को वो बुलाता है, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग. डग मीन्स व्हाट? पुश समवन अंडर वाटर. किसी को पानी में फेंक देना, अंडर वाटर. ओके, तो वो क्या बोलता है? हाउ वुड यू लाइक टू बी डग. ओके, एंड देन व्हाट ही सेज, With that he picked me up. और इसी के साथ यही बोलते हुए उसने उस बच्चे को उठाया. He picked me up and tossed me into the deep end. और उसने उस बच्चे को डीप एंड में फेंक दिया. I landed in a sitting position. अब वो जैसे ही जिस पोजीशन में वो सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ था उसी पोजीशन में वो लैंड हो गया. swallowed water. उसने बहुत सारा पानी पी लिया. and went at once to the bottom. और एक बार में ही वो पानी के नीचे चला गया. I was frightened but not yet frightened out of my wits. वो बहुत डरा हुआ था लेकिन अभी भी क्या था, अभी भी उसका दिमाग काम कर रहा था. नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई, इतना भी डरा हुआ नहीं था कि इसका दिमाग काम करना बंद कर दे. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम. और रास्ते में ही उन्होंने क्या प्लान किया कि वो क्या करेंगे, लैंड करेंगे नीचे ज़मीन में. जो स्विमिंग पूल का जो टाइल थी उसको वो टच करेंगे, ज़ोर से हिट करेंगे और फिर एकदम से वो ऊपर आ जाएंगे. तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आई वुड मेक अ बिग जंप. और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं एक बहुत
तगड़ा सा अच्छा सा जंप लगाऊंगा एंड कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और ऊपर आते ही मैं पूरा फ्लैट हो जाऊंगा एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और एज पूल के एज पे पैडल करते हुए मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये सब प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही थी। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. अब लेकिन वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। वो 9 फीट उनको 90 फीट जैसे लग रहे थे। It seemed long way down, मतलब नीचे तक की जो गहराई थी वो इतनी ज़्यादा थी। 9 फीट उनको इतना लग रहा था, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, और 9 फीट उनको 90 फीट के जैसे लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बर्स्ट, और पानी में सांस नहीं ले पाने की वजह से ऐसा लग रहा था कि अब उनके लंग्स बर्स्ट हो जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन जैसे ही उनके फीट ने बॉटम को टच किया तो उन्होंने क्या किया? What he did, I summoned all my strength. He gathered, summoned means what? He gathered all his strength and made what I thought was a great spring upward. और उन्होंने जोर से हिट किया बॉटम को, और उन्होंने बहुत स्प्रिंग की तरह ऊपर आने की कोशिश की। I imagined I would bob to the surface like a cork. सो वॉट ही हैड इमेजिन्ड, बॉब मतलब उन्होंने इमेजिन किया था कि एक कॉर्क की तरह जंप करेंगे। बॉब मीन्स जंप टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, जैसे कि बॉटल की ढक्कन ज़ोर से खुलती है उस तरीके से वो सरफेस पे आ जाएंगे। स्टेड आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। उन्होंने ऐसा किया ज़रूर, लेकिन ही केम अप स्लोली, वो धीरे धीरे ऊपर आए, और जब उन्होंने आँख खोली तो उन्होंने अपने आप को पानी के अंदर ही पाया। आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। अब जब उन्होंने अपनी आँख खोली तो वॉट ही फाउंड दैट एवरीवेयर देयर वॉज वाटर एंड नथिंग एल्स। वो पानी के अंदर ही थे अभी भी। इट मीन्स वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। अब एक ऐसा पानी जिसका जो कलर था वो येलोइश दिख रहा था। आई ग्रू पैनिकी, अब उनको बहुत तकलीफ होने लगी पानी के अंदर। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली अ वाटर। अब उन्होंने कोशिश की ऊपर आके, उन्होंने ऊपर आने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि मैं शायद कोई रस्सी पकड़ लूँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ, उनके हाथ में क्या लगा? सिर्फ पानी। हैंड क्लच्ड ओनली अ वाटर, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ पानी लगा। आई वॉज सफोकेटिंग, वो सफोकेट कर रहे थे पानी के अंदर, सांस नहीं ले पा रहे थे। एंड आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। उन्होंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी साउंड नहीं आया। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, लेकिन अब फिर अचानक कोशिश करते करते उनकी आइज़ और नोज़ तो पानी के बाहर आ गए, लेकिन उनका माउथ पानी के बाहर नहीं आ पाया। आई फ्लेल्ड एट द surface of the water. Now flailed means what? Waved. So I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वेव करने की कोशिश की वाटर सरफेस पे, लेकिन क्या हुआ, वो पूरी तरह से, उन्होंने बहुत सारा पानी पी लिया था और वो पूरी तरह से चोक हो चुके थे, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, अपने पैरों को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, बट दे हंग एज डेड, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों में जान ही नहीं है, वो बेजान की तरह लटक रहे थे। डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, और उनके पैर ऐसे लग रहे थे कि डेड हो चुके हैं, पैरालाइज हो चुके हैं, स्टिफ हो चुके हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और इतना पानी का जो फोर्स था उनको नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हर्ड मी, उन्होंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन सिर्फ पानी ही उनको सुन सकता था, मतलब वो सिर्फ पानी के अंदर थे, कोई भी उनको सुनने के लिए वहाँ पर नहीं था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब उन्होंने फिर से एक प्लान बनाया कि वो फिर से नीचे जाएंगे बॉटम में, और फिर से वैसा ही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, वैसा ही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि वो नीचे जाएंगे, बहुत ज़ोर से सरफेस को हिट करेंगे और ऊपर आ जाएंगे।
I struck at the water as I went down, spending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. अब क्या हुआ कि I stuck at the water as I went down. अब वो वहीं पर पानी में ही स्ट्रगल कर रहे थे, फंसे हुए थे, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, एज वन इन नाइट मेयर, और वो सिर्फ पानी से ही लड़ रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे कि हम सपने में कोई नाइट मेयर, जब हम कोई नाइट मेयर देखते हैं और हम सपने में ही उन चीज़ों से लड़ने लग जाते हैं और उनसे फ़ाइट करने लग जाते हैं. उसी तरीके से वो पानी में ही फ़ाइट कर रहे थे. वो सारी चीज़ें पानी के अंदर ही चल रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. इट वॉज जस्ट एन इररेसिस्टिबल फोर्स. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. उन्होंने उनकी सांस जाने लगी. माई लंग्स एक्ड. उनके लंग्स में पेन होने लगा. माई हेड थ्रोब्ड. ज़ोर ज़ोर से बजने की आवाज़ आने लगी. थ्रोब्ड मीन्स फेल्ट पेन एंड रेगुलर बीट्स. अब लगातार पेन होने लगा और रेगुलर बीट्स उनके दिमाग में चल रही थी, रेगुलर बीट्स हो रही थी. थ्रोब्ड मीन्स व्हाट? फेल्ट पेन एंड रेगुलर बीट्स. So this is the meaning of throbbed. I was getting dizzy and बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी. अब वो बहुत वीक फील कर रहे थे, वो बहुत कमज़ोर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर से उस स्ट्रैटेजी को रिमेंबर किया. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस. कि मैं उसी तरीके से हिट करूँगा बॉटम को, जो स्विमिंग पूल का बॉटम पार्ट है उसको मैं बहुत ज़ोर से, उसका सरफेस है उसको बहुत ज़ोर से हिट करूँगा और एक कॉर्क की तरह मैं पानी, जिस तरीके से एक बॉटल खुलती है उसका कॉर्क बाहर आता है, उसी तरीके से मैं एक कॉर्क की तरह बाहर आ जाऊँगा. I would lie flat on water. Again the same strategy started coming onto his mind, and what he started thinking, that I would lie flat on the water. What he was planning, that he remembered the same strategy, and what was he planning? He would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. And I would lie flat on the water. और फ्लैट पानी में वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे. स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स. अपने आर्म्स को फैला लेंगे. एंड थ्रैश विद माई लेग्स. और अपने क्या करेंगे, अपने लेग्स और हाथों से वो तैरने की कोशिश करेंगे, हिट करेंगे. ओके, पानी को हिट करेंगे और इस तरीके से वो तैरने की कोशिश करेंगे. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं पानी के अंदर, कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा और पानी के मैं बाहर आ जाऊँगा सेफ्टी से, और पानी के जो स्विमिंग पूल है उसके एज तक मैं पहुँच जाऊँगा और सेफ हो जाऊँगा. आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. अब वो अंदर ही नीचे जाते ही जा रहे थे एंडलेसली. आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो. और उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पानी जिसका क्या था, कलर येलो था. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. ऐसा वाटर जिसके अंदर से उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. उनको येलोइश वाटर दिख रहा था और उनको और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी. So this was up to here. Just go through the video and try to understand the chapter. Next part will resume from tomorrow. So have a nice day everyone.